Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our third lecture on software testing, and in this lecture first of all we will recap of what we have covered in the previous lecture, and then we will see how do we write test cases. And before actually we get to test cases, we will see that we will briefly cover the debugging process, that what are the different techniques that are used to actually uncover the bugs. So let's have a recap. In our last lecture we focused on the testing methods and testing types. Broadly, we defined that there are three categories of testing methods. We have black box testing, we have white box testing, and then we have incremental or thread testing. Now, why do we do black box testing? This is important. We need to actually differentiate between black box and white box testing. We call a testing black box testing whenever we are interested in checking the functionality of our program. Okay, so our goal is that we want to test whether the functionality or whatever our program was supposed to do, whether it's doing that or not. And in this, we are not concerned with the code or with the logic with which the code is written. Okay, so we discussed different types of black box testing. Then one of the type of the black box testing is system testing. Okay, where we said that once our whole system is complete, then we test our system. Okay, so basically, and when we do system testing, we basically have the whole set of requirements, because when we say our system is complete, then we have to validate our system against the requirements. So we check our system for all the functionalities that the customer asked for. Another type of black box testing was end-to-end testing. But the only difference is that in end-to-end testing, we try to mimic the real world. Okay, and then there were three other types of black box testing, which were stress testing, load testing, and performance testing. Okay, in all of them we try to measure, or we try to check the performance of our system in heavy loads or in heavy stress. Okay, and there were various other types of black box testing that we covered, which included mutation testing, where we induce errors just to check whether the test cases that we have written, whether they are good enough or not. Then we have regression testing, where we kind of retest. For example, we tested the software, we found some bugs, and we reported it to the development team. They fixed the bugs, and then we retest the code to check whether the bugs that we identified, they have been fixed or not. So that is called regression testing. So in all, we had a number of black box testing techniques. But the important thing that you need to remember, whenever the term comes up black box testing, then you should know that whenever we do that kind of testing, we are interested in knowing whether the functionality that our program or our code was supposed to provide, whether it's doing that or not. We are not interested in knowing कि हमारा code कैसे लिखा हुआ था. We do not want to know that. Okay. The second type, or the second main method of testing, was white box testing. Okay. Now, as the name suggests, in the black box, it means that something that is opaque, so we do not, or we cannot see what's inside. Whereas in white box testing, it means that we can see through. Okay, so whenever we do white box testing, we actually try to check that, we try to actually check our code. Okay, so we try to see that, we try to execute every line in our code at least once, because we want to make sure that the line is working fine. Okay, and the second thing, we want to check whether the control of our program, it goes to every line or not. Okay, and then when we are doing white box testing, we study different types of white box testing. Okay, because in our code we have different things. In our code we have condition statements, we have simple statements, we have loops, we have condition decision statements. So there are different categories of statements in our code. So, and these different categories, they define different types of testing. Okay, now we had simple loop testing. Okay, where we saw, okay, how do we test a loop? We basically try to execute our loop once, we try to execute our loop twice, and then we try to execute our loop a certain number of times. Okay, and then we try to test a loop in a way that it doesn't execute at all. Okay, and similarly we also try to see कि जो हमारे loop की boundary conditions है, ठीक है, उसके ऊपर हमारा code जो है वो loop से बाहर आता है कि नहीं आता. Okay, so that is how we did simple loop testing. And then we discussed, if we had nested loops, how do we do testing? We basically go to the if we have two loops nested, then we go to the second one first, and then we move upwards or we move backwards. Similarly, we saw the testing for concatenated loops and for unstructured loops.
After that, we studied that how do we test our simple statements, how do we test our decision or conditions. So the thing that we would do, for example, if there is a condition, if A is less than 3, then do this, else do that. So in that case, we will try to check this if condition with the value of A less than 3, and we'll see if the code actually comes in the if part. Okay, and then we'll assign a value to A which would be greater than 3, and then we'll see whether the code comes in the else part or not. So that was white box testing, where we actually try to check our code or try to test our code, that whatever we have written or whatever logic we have written in our code, whether that is what customer wanted or not. Okay, and the third category of the testing was, or third method of testing was incremental or thread testing. Okay, in incremental testing, what we do was, it is basically more applicable to, as we discussed in the last lecture as well, it is more applicable to agile software process models, because what we do is we always build in small increments. Okay, and as you guys remember from the agile lectures or agile process model lectures, that an increment in an agile process model, you can basically submit multiple increments in a day. Okay, so that would mean that you are adding new functionality to the product very frequently. Okay, and every new increment might be in the same module, that you already delivered. Okay, so whenever you add something new, you want to actually test whether the new functionality that you have added, it affects the previous one or not. So that is where incremental testing comes in. Okay, and then thread testing, if you guys remember that when we do white box testing, then we try to check that every logical path or every basically our control or a flow of our program, it goes into every statement. Okay, whereas in thread testing, what we tend to do is that we try to identify different logical paths in the different modules. Okay, so imagine that you have a complete program which consists of, okay, imagine we have a complete program which consists of 3 modules. Okay, and all of them, they are connected in some way. Okay, let's say we have something like that. Okay, now you are supposed to generate a report. Okay, and that report needs that this component A talks to B and then it talks to C. So the logical path is this one. Okay, so when we say we are doing thread testing, so what we try to do is we try to identify these logical paths. Okay, and we see whether when we execute this logical path, we get the desired functionality or desired result or not. Okay, so it is slightly different, where in case of black box testing, what we do, we try to check the general functionalities, okay, of maybe of individual modules or when we integrate them. But in case of thread testing, we try to identify these different logical paths and then we try to execute them, and we try to see whether this functionality which combines different modules, it actually works or not. Okay ji. So after we covered these 3 testing methods and types, we tried to make a matrix between the testing levels and testing methods. And the testing levels that we covered in the first lecture on software testing, they were unit testing, integration testing, system testing and acceptance testing. Okay, and then we saw that unit testing के अंदर कौन सी testing methods लगते हैं? It's only white box testing. Whereas in case of integration testing, हमारे कौन से method लगेंगे? It can be white box testing, it can be incremental, and it can be thread testing. Whereas when we do system testing, then it is only black box testing method. And at the level of acceptance testing, we only again apply black box testing techniques. So basically, we drew that matrix which actually tells us at what level of testing, what kind of methods or what kind of techniques we actually use. Then finally, we saw some steps that how we can ensure that the testing strategy we have, that is actually successful or not. Okay, and we identify a few key things. For example, few of those things were that whenever you have a testing process in place, you need a quick feedback. Okay, for example, I am the tester. I am the person who actually developed the code. Okay, and I have submitted it. I have said, okay, I have made something. Now I am waiting for the testing team to actually tell me whether there are any bugs in my code or not. So I want a quick feedback from the testing team. If I do not get that, then there would be gap in the process and the testing method would not be efficient. So to ensure that the testing strategy is good, we need quick feedback, quick response from the testing team. Okay, so that was what we covered in the previous lecture, and let's see what we have in store for us in today's lecture. So the topics that we are going to cover today are, first of all, we'll see what is the debugging process, and so we will try to identify the main techniques of uncovering bugs. Then we will introduce test cases, and we will try to
also define that what is a test case and what are the different things that need to be included in a test case, and we'll try to come up with steps that how we can write better test cases. Okay, and then we'll see few examples of test cases. Okay ji, now what is the debugging process? Okay, I'm sure that you guys are familiar with the debugging process by now, but let me just quickly tell you what it is. For example, you write a piece of code, and there are two kinds of error that can occur when you write a program and when you write a code. Okay, one kind of errors are, I mean, there are multiple kind of errors, but there are few errors which the compilers can easily identify. Okay, for example, the syntax errors, okay, or the linking errors. You know, these are example of errors जो कि आपका compiler पकड़ लेता है. Okay, and it will tell you कि भाई there is something wrong in this line of the code, or you know, if you were supposed to include some files, then you might have missed a few. तो आपका compiler ये आपको बता देता है. Okay, these errors are very easy to fix. Okay, because you straight away know कि where the problem is, and the compiler is intelligent enough to actually tell you what the problem is. Okay, so these kind of bugs, they are very easy to resolve. Okay, but there are few errors in your code which are semantic errors. Okay, for example, you have made a mistake, you know, in the logic. Okay, or another very interesting kind of error is if you have used pointers, okay, in C++, then one thing that you have to do in C++ is whenever you create a pointer, you allocate memory to it, but whenever you want to destroy the pointer, you have to actually reallocate the memory yourself. So you have to actually delete every memory that you allocated. Okay, now the problem what occurs in C++ at times is that at times people tend to forget that they have to actually recapture the memory, okay, or delete the memory that they allocated. Okay, so when this occurs, there are memory leaks in the program. Okay, and then you have to basically look through your whole code and try to figure out that where is the place where you actually didn't do that. Okay, whereas in case of Java and you know, this garbage collection, that is automatic, so you do not actually need to delete or recapture the memory yourself. Okay, so that is one kind of problem, but there can be various things. Okay, for example, if you have there was a business logic that you needed to implement, and you have done some small, you know, step, you have missed one small step. Okay, now that your compiler would not give a syntax error because you have written all the statements correctly, but you have missed something. Okay, and you are not getting good accurate results. Okay, in that case, you would have to actually figure out, you have to see or go through the whole code and try to figure out that, okay, where was the problem. Okay, so these kind of errors, they are very tricky to figure out, and for those kind of errors we do a process which we call debugging. Okay, there are some IDEs and there are some which makes the whole process very easy. For example, if you're coding in Visual C or Visual Studio or in Java for that matter, debugging is very convenient. Okay, there's a debugger. Okay, for example, you're coding in Java and you're using NetBeans, then there is a debugger in it. Okay, so you can actually debug your code using that. You can, you know, set watch on different variables. You can actually jump to different statements. You know, you can do things like that. So there are debuggers which makes your life very easy. Okay, so let's see what are the different methods and techniques that can be used when you have to actually debug the code. Okay, first of all, debugging occurs as a consequence of successful testing. Okay, why we say that? क्योंकि जब तक टेस्टिंग अच्छी नहीं होगी और आपको बग का पता नहीं लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, आपने टेस्टिंग के दौरान यू एक्चुअली डिस्कवर्ड कि यार द आउटपुट दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम सर्टेन फंक्शनैलिटी दैट इज नॉट कंसिस्टेंट. ओके, फॉर एग्जाम्पल आप उसको सेम इनपुट दे रहे हैं एंड ईच टाइम इट कम्स अप विद अ डिफरेंट वैल्यू. ओके, नाउ दैट इज रॉन्ग. ओके, सो if you have done testing correctly, only the debugging process it initiates after that. Okay, and the second important thing is that it is very much an art rather than a science. Okay, now this is something which is, I think, very hard to explain for me as a science teacher, but why do I say it's an art and it's not a science? You actually learn that from experience, that you might have few of your colleagues, a few of your friends who are very good at, you know, finding bugs. Okay, now this is an innate ability. You know, some people, they are really good at it,
okay, and they have the ability to actually figure out, or they have the ability to understand the code and go to the place where the bug was. So I have experienced in my life that there are few people who are very good at that. Okay, you show them your code and they would take very little while and they will say, okay, that problem might be there, and they will go there and try to fix it. So it's not an art. Basically it's not a science, it's an art, and where we have to actually figure out that where the bug is. So, and good debugging ability, it may be an innate human trait. As I said, some people are really good at that, and some people, it doesn't matter how hard they try, they take some time to actually find the bug. Okay, so there is actually large variance in the ability of different people for for debugging. Okay, and this is true. You will once you start coding at a larger extent, or for for example, when you work in bigger companies, you will find people who are really good at this stuff, and you will find people who are good at it, but they are not as good as the best. Okay, so the debugging process, when does it begin? It begins with the testing. Okay, so when you actually start testing your code, then the debugging process begins, because at the testing phase is when you uncover a bug. Okay, and then when we say we are debugging it, we are trying to figure out why this error is occurring. Okay, क्योंकि टेस्टिंग के अंदर हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने a + b किया और इसका मेरे पास एक रिजल्ट c आना चाहिए था. ओके, तो टेस्टिंग के अंदर मैंने ये कवर कर लिया कि रिजल्ट c नहीं आ रहा, देयर इज सम डेल्टा c. तो ये जो डेल्टा c है मुझे पता लग गया यार एरर है. नाउ दिस इज समथिंग दैट हैज बीन अनकवर्ड ड्यूरिंग टेस्टिंग. ओके, बट व्हाट डीबगिंग वुड डू, डीबगिंग वुड ट्राई टू फिगर आउट कि a + b c क्यों नहीं दे रहा. ओके, सो दैट इज दैट. सो डीबगिंग का प्रोसेस एक्चुअली स्टार्ट हो जाता है व्हेन यू डू टेस्टिंग. Okay, so what do we do? The results are assessed and the difference between expected and actual performance is encountered. ठीक है, यानी कि you try to actually analyze कि जो आपके actual results आने चाहिए थे, ठीक है, और जो आ रहे हैं उनमें difference क्या है. ठीक है, this difference is a symptom of an underlying cause that lies hidden. Whenever that is the case कि आपके actual results के अंदर, ठीक है, और जो आपके expected results हैं उनमें जब difference आ जाए तो you know there is something wrong. ठीक, जिससे मैंने कहा कि अगर आपका C आना चाहिए था और हमेशा आपका डेल्टा C आ रहा है, ठीक है, मीनिंग देयर इज अ डिफरेंस, यानी कि C - डेल्टा C इज डेल्टा. तो आपको ये पता लग गया कि यार एक्सपेक्टेड के अंदर और एक्चुअल के अंदर एक डेल्टा आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, दैट एक्चुअली टेल्स यू देयर इज सम प्रॉब्लम. ओके, एंड व्हाट द डिबगिंग प्रोसेस डज, द डिबगिंग प्रोसेस अटेम्प्ट्स टू मैच सिम्टम्स विद द कॉज, देयरबाय लीडिंग टू एरर करेक्शन. ओके जी, तो डिबगिंग के अंदर हम करते क्या है कि ये जो हमें सिम्टम नजर आया था, ठीक है, यानी कि जो इनपुट के हमारी जो एक्सपेक्टेड आउटपुट के अंदर और एक्चुअल आउटपुट के अंदर जो डिफरेंस आ रहा था, विच वाज द सिम्टम के देयर इज एन एरर, उस सिम्टम को देख के वो कॉज की तरफ जाने की कोशिश करता है. ठीक है, एंड व्हेन इट डज दैट इट ट्राई टू बेसिकली करेक्ट द बग. ओके जी, now the second question is that why is debugging so difficult? Okay, or why we say it's an art, और कुछ लोग इसको बहुत अच्छा करते हैं, कुछ लोग अच्छा नहीं करते. Why do we say that? Okay, the problem is that the symptom and the cause may be geographically remote. Okay, क्योंकि हो सकता है कि आपने, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपने पॉइंटर को, जिस तरह C++ के अंदर मैंने आपको कहा कि आपको मेमोरी को और गार्बेज कलेक्शन खुद करनी पड़ती है. ओके, सो उसके अंदर आपने अगर पॉइंटर क्रिएट किया तो यू हैव टू डिलीट इट. ठीक है, जब आपका उसका यूज खत्म हो गया. अब हो सकता है कि आपने एरर आपका वहां पर ना आए जहां पे आपने उसको डिलीट करना था. ठीक है, और आपका मेमोरी लीक कहीं और पे हो जाए, किसी और स्टेटमेंट के ऊपर जाए, और डिफरेंट स्टेटमेंट के ऊपर जाके आपका हो सकता है कि वो मेमोरी ओवरफ्लो का एरर आ जाए. ठीक है, जब भी ये होगा तो एरर उस जगह पे नहीं है जहां पे एक्चुअली प्रॉब्लम है, यानी कि जहां पे आपका सिम्टम है, सिम्टम आपको जहां पे पता लगा, आपका एक्चुअल एरर वहां पे नहीं है. ठीक है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम विद डीबगिंग. और जो ये सिम्टम्स होते हैं, जैसे ये मेमोरी लीक के एरर्स हैं, आप एक दफा कोड को चलाएंगे बिल्कुल सही चल जाएगा, दूसरी दफा चलाएंगे तो नहीं चलेगा. ठीक है, यानी कि सो दैट इज अ वेरी बैड प्रॉब्लम कि आपने 5 दफा कोड को चलाया जिसमें से 3 दफा आपका कोड ठीक चलता है, 2 दफा सही नहीं चलता. ठीक है, नाउ एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जब आप एक प्रोफेशनली एक प्रोडक्ट किसी कस्टमर को देने जा रहे हैं तो यू डू नॉट वांट दैट. यू वांट योर प्रोडक्ट टू बी रिलायबल, यू वांट द प्रोडक्ट टू गिव कंसिस्टेंट रिजल्ट्स. ठीक है, तो व्हेनेवर दैट इज द केस कि आपका रिजल्ट्स कंसिस्टेंट नहीं आ रहे, तो यू नो देयर इज समथिंग रॉन्ग. ठीक है, और ये सिम्टम्स दे कैन डिसअपीयर टेम्परेरीली. और अनदर थिंग इज द सिम्टम में एक्चुअली बी कॉज्ड बाय नॉन एरर्स. ठीक है, यानी कि आपकी कोई छोटी सी गलती है जिसकी वजह से वो प्रोपेगेट करता 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 एरर ज्यादा हो गया. ठीक है, और द सिम्टम में बी कॉज्ड बाय ह्यूमन एरर दैट इज नॉट इजीली ट्रेस्ड. ठीक है, जिस तरह ये डिलीशन वाला है, दैट इज अ ह्यूमन एरर.
ठीक है, यानी कि दिस इज समथिंग दैट द पर्सन हु वाज एक्चुअली राइटिंग द कोड ही फॉरगॉट टू डू एंड दिस इज कॉज सम एरर, ठीक है। तो दैट इज व्हाई डिबगिंग इज डिफिकल्ट कि एक पहली चीज तो क्या है कि द सिम्टम एंड द एरर दे मे बी जियोग्राफिकली रिमोट, यानी कि जहां पे आपको सिम्टम मिला है कि यहाँ पे कोई मसला है, और जो एक्चुअल एरर है दे आर नॉट एट द सेम प्लेस, ठीक है। फिर द सिम्टम इट कैन डिसअपियर टेम्परेरीली, यानी कि एक दफा वो एरर आएगा, एक दफा एरर नहीं आएगा, ठीक है, अगेन दैट इज अ प्रॉब्लम। फिर द सिम्टम इट कैन बी कॉज बाय द डेवलपर, उस डेवलपर ने कोड लिखते हुए कोई गलती कर दी, ठीक है, और यू नो देन अगेन वो भूल उसको तो शायद याद भी नहीं होगा कि उसने कहाँ गलती की, अदरवाइज ही वुड हैव फिक्स्ड इट, तो अगेन दैट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। और कई दफा जो आपके जो सिम्टम्स, ये जो एक्चुअली आपके सिम्टम्स है वो छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से आ रहे होंगे, ठीक है, जो कि अगेन इट इज वेरी हार्ड टू फिगर आउट। सो दैट्स व्हाई वी से कि डिबगिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस एंड वी स्टिल कंटिन्यू दैट डिस्कशन कि व्हाई डिबगिंग इज सो डिफिकल्ट, कि द सिम्टम मे बी रिजल्ट ऑफ टाइमिंग प्रॉब्लम्स रेदर देन प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, and then it may be difficult to accurately reproduce input condition such as the asynchronous real time information, ठीक है। हो सकता है कि आपका प्रोग्राम किसी सर्टेन इनपुट के ऊपर जाके क्रैश करता हो, ठीक है, ओके, और वो जिसकी एग्जांपल क्या है कि इफ इट्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन दैट इज कमिंग इन, तो आपको उस एक्चुअल इनपुट को रिप्रोड्यूस करना बड़ा मुश्किल हो, ठीक है, कि जब भी वो इनपुट आएगी तभी आपका प्रोग्राम क्रैश करेगा, ठीक है। तो एक्चुअली फिगर आउट कि वो इनपुट क्या थी और टू बी प्रोवाइड और टू कंसिस्टेंटली गिव दैट पर्टिकुलर इनपुट इट माइट बी डिफिकल्ट एट सर्टेन टाइम्स, ठीक है, ठीक है। द सिम्टम मे बी intermittent such as in embedded systems involving both hardware and software, okay, और again the problem is that कि हो सकता है कि you have implemented embedded software जिसके अंदर आप कोई हार्डवेयर भी चल रहा है और सॉफ्टवेयर भी चल रहा है, ठीक है, तो सिम्टम आपका कभी एक जगह आ रहा है कभी दूसरी जगह आ रहा है, अगेन दैट इज अ प्रॉब्लम। और द सिम्टम मे बी ड्यू टू causes that are distributed across a number of tasks running on different processes, ओके जी। सो ये भी हो सकता है कि द एक्चुअल सिम्टम इट्स मूविंग बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसेस, ओके, सो दीज आर द डिफरेंट कॉजेज व्हिच मेक इट वेरी डिफिकल्ट टू डीबग, ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो चीज ये है कि जो आपका सिम्टम है यू हैव टू ट्रेस इट बैक टू द एरर, ठीक है, एंड दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स व्हिच मेक इट वेरी डिफिकल्ट टू कनेक्ट द टू, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी से कि डिबगिंग इज डिफिकल्ट। ओके जी, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट डिबगिंग स्ट्रेटजीज दैट पीपल यूज, ठीक है। First of all, the objective of debugging is to find and correct the cause of software error, ठीक है, यानी कि वो जो आपकी actual और expected outcome के अंदर difference है, debugging का मकसद क्या है, उसको खत्म कर दिया जाए, यानी कि जो आपकी actual output है it should match your expected outcome. And the bugs they are found by a combination of systematic evaluation, intuition and luck, ठीक है, again luck is very important, okay, at times you started debugging the code and you straight away spotted the human error, आपको पता लग गया this is you know something that he missed when he was coding, तो आपको फौरन से पता लग गया, ठीक है, तो that is luck, ठीक है। Similarly, debugging methods and tools are not a substitute for careful evaluation based on complete design model and clear source code, ठीक है। There are different debugging tools, लेकिन अगर आपका कोड प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर नहीं होगा तो इट विल मेक वेरी डिफिकल्ट टू डीबग योर कोड, ठीक है। देयर आर 3 मेन डीबगिंग स्ट्रेटजीज दैट आर इन प्लेस। नंबर 1 इज ब्रूट फोर्स, ठीक है, देन वी हैव बैक ट्रैकिंग एंड देन वी हैव cause elimination, and let's see what do we do in actually all 3 of them. So the first strategy for debugging is brute force, and what do we do in it? It is the most commonly used and the least efficient method. वो तो खैर हमें नाम से पता लग जाता है, when we said brute force, so it meant that basically we'll try every possible thing to find the bug or to correct the bug, ठीक है, और it is used when all else fails, okay. जब आपके डिबगिंग के बाकी दोनों तरीके शायद फेल हो जाते हैं ना, देन यू ट्राई टू यूज ब्रूट फोर्स, क्योंकि आपको बग मिल ही नहीं रहा, तो वन वे ऑफ डूइंग ब्रूट फोर्स इज कि आप हर लाइन के बाद एक सी आउट लिखते जाएं, ठीक है, और आप एक फॉर एग्जांपल इफ यू आर यूजिंग प्रोग्रामिंग इन C++ एंड इफ यू वांट टू प्रिंट आउटपुट्स तो यू यूज सी आउट, तो इसी तरह अगर आपने ब्रूट फोर्स का एक तरीका क्या होगा कि यू आर ट्राइंग टू प्रिंट आफ्टर एवरी स्टेटमेंट, ठीक है, आप हर स्टेटमेंट के बाद प्रिंट करते जा रहे हैं, जिस स्टेटमेंट के बाद आपका कोई मसला आया तो यू और जितने भी वेरिएबल की वैल्यूज हैं सारे प्रिंट करते जा रहे हैं, ठीक है, तो उससे आपको क्या पता लग जाएगा कि वेयर एवर द प्रॉब्लम इज यू वुड नो स्ट्रेट अवे, ठीक है, या जहां पे आपका प्रोग्राम क्रैश किया आपको शायद पता लग गया। अच्छा, नाउ व्हाट डज इट इन्वॉल्व? इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ मेमोरी डम्प्स, ठीक है, रन टाइम ट्रेसेस एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स, ठीक है, जिस तरह मैंने अभी आपको आउटपुट स्टेटमेंट्स की एग्जांपल दी कि यू पुट आउटपुट स्टेटमेंट्स एवरीवेयर, ठीक है, wherever there is a problem you would know,
So these are the different techniques that are used to do brute force when you're using brute force strategy. ठीक है, और it leads many time to wasted effort and time. ठीक है, हो सकता है कि brute force के बाद भी आपको शायद प्रॉब्लम ना मिले, तो it basically involves a lot of effort. Okay, and it is always used as the last resort. You always try to correct the bugs, without brute force. But this is the last technique that you can use when you are trying to fix the bugs, and that is the brute force strategy. Okay, the second strategy is backtracking. Okay, it can be used very successfully when the size of the problem is small. ठीक है, यानी कि आपके जो number of lines of code हैं they are actually smaller, तो उसके अंदर it is suitable to use backtracking. ठीक है, the method starts at the location where a symptom has been uncovered. तो आप करते क्या है कि wherever you have found the bug, ठीक है, आप वहां से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, and then you actually backtrack. You try to figure out कि आप इस स्टेटमेंट तक कहाँ से आए थे. फॉर एग्जाम्पल आपका मेन फंक्शन था, मेन फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन कॉल थी. ठीक है, और वो फंक्शन के अंदर एक्चुअली प्रॉब्लम था, तो उस फंक्शन के अंदर गए, उससे आप पीछे मेन में आए और मेन से फिर आपने ऊपर जाके देखा. तो बेसिकली जहां पे आपका सिम्टम होता है यू ट्राई टू बैक ट्रैक फ्रॉम देयर. ठीक है, ठीक है, तो आप करते क्या है, द सोर्स कोड इज देन ट्रेस्ड बैकवर्ड्स मैनुअली until the location of the cause is found. अच्छा, तो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आपका कोड इस तरह से था, दिस इज आवर कोड. हमने कहा कि जी हमने इस तरह कोड लिखा हुआ था, दिस इज आवर मेन फंक्शन, और यहाँ पे हमने फंक्शन ए को कॉल किया पहले, और फिर हमारा एक और फंक्शन था फंक्शन बी. ठीक है, नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल दैट आई एम जस्ट ट्राइंग टू राइट टू इलस्ट्रेट यू. और लेट्स से कि हमने फंक्शन बी के अंदर थे और यहाँ पे एक स्टेटमेंट के अंदर एरर आ गया. ठीक है, तो अब बैक ट्रैकिंग के अंदर हम क्या करेंगे कि जहां पे हमें एरर मिला है या वेयर एवर देयर इज अ सिम्टम, हम इससे ऊपर जाना शुरू करेंगे. यहां तक आए तो हमें पता लगा अच्छा फंक्शन भी बुरा हो गया, फंक्शन भी कॉल कहां से हुआ था, पता लगा मेन से, तो मेन में आए, इसके ऊपर वाली स्टेटमेंट को देखना शुरू किया. एंड दैट्स हाउ वी डू बैक ट्रैकिंग. नाउ एक्चुअली यू कैन सी विद दिस प्रोसेस कि व्हेन द साइज ऑफ द प्रॉब्लम, और यहाँ आपका कोड बड़ा हो जाएगा अगर, तो बैक ट्रैकिंग वुड बी वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, क्योंकि बैक ट्रैकिंग के जो पॉसिबल पाथ्स हैं वो बहुत ज्यादा बन जाएंगे. ठीक है, so that is the problem with the larger programs, and that's why we cannot use backtracking when we have very large problems. ठीक है, तो that strategy would not work or would be very difficult to actually implement. Okay जी, and then again backtracking is a manual process कि आप अपने कोड को एक एक करके ऊपर वाली लाइनों को देखना शुरू कर देते हैं, and we try to figure out where the problem is. And the strategy number 3 is cause elimination. ठीक है, what do we do in cause elimination? It involves the use of induction or deduction and introduces the concept of binary partitioning. ठीक है, तो we use induction and we use deduction and we try to partition the code. ठीक है, induction के अंदर हम क्या करते हैं, we go from very specific to general. ठीक है, ठीक है, for example we prove that a specific starting value is true, then prove that the general case is true. ठीक है, and in case of deduction we go from general to specific, so we do the other way around. We show that a specific conclusion follows from a set of जनरल प्रेमिसेस. ओके जी, तो हम करते क्या है कि द डाटा दैट इज रिलेटेड टू द एरर ऑकरेंस आर ऑर्गेनाइज्ड टू आइसोलेट द पोटेंशियल कॉजेस. ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपको पता लग गया यार कि फॉर एग्जांपल आपकी एक रेंज ऑफ इनपुट वैल्यूज है जिसके अंदर आपका प्रॉब्लम क्रैश करता है, आपका प्रोग्राम क्रैश करता है. तो आपका जो इनपुट डाटा है आप उसको पहले यू ट्राई टू फिगर आउट कि किस डाटा के ऊपर मेरा ये प्रॉब्लम फेल हो रही है. ठीक है, देन यू बिल्ड अ हाइपोथेसिस जिसको हम कहते हैं कॉज हाइपोथेसिस. ठीक है, तो a cause hypothesis is devised and the aforementioned data, यानी कि आपने जो डाटा हमने ऊपर देखा था कि किस पे हमारा प्रॉब्लम क्रैश करता है, are used to prove or disprove the hypothesis. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं कि यार जब भी मेरी इनपुट की रेंज इतनी होती है तो क्रैश कर जाता है, तो आप उस इनपुट डाटा को यूज करते हैं अपने हाइपोथेसिस को या तो ट्रू करते हैं या फॉल्स करते हैं. ठीक है, ऑल्टरनेटिवली a list of all possible causes is developed and the tests are conducted to eliminate each cause. ठीक है, अब अगर देखें इन दोनों के अंदर, तो जो पहले में हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं दैट इज बेसिकली स्पेसिफिक टू जनरल एंड द अदर वन इज जनरल टू स्पेसिफिक. ठीक है, और इफ इनिशियल टेस्ट इंडिकेट दैट अ पर्टिकुलर कॉज हाइपोथेसिस शोज प्रॉमिस, डाटा आर रिफाइंड इन एन अटेम्प्ट टू आइसोलेट द बग. ठीक है, अब यानी कि इसके अंदर हम करते क्या है कि अगर तो हमारा हाइपोथेसिस ठीक हो जाता है, ठीक है, तो हम अपने डाटा को और रिफाइन करते हैं. ठीक है, we try to refine it as much as we can and the reason why we do that, हम उससे specific value के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं जिसके ऊपर हमारा problem crash या हमारा जो आउटपुट के अंदर वो या जो symptom है जिसके ऊपर वो symptom obvious हो रहा है. ठीक है, and then we try to fix a bug. So this is the third technique.
हमने कौन सी वी स्टडीड ब्रूट फोर्स, वी हैव स्टडीड बैक ट्रैकिंग, एंड द थर्ड वन इज कॉज एलिमिनेशन, ठीक है, वेयर वी यूज टू मेन टेक्निक्स जिसको हम इंडक्शन कहते हैं और डिटेक्शन कहते हैं. एंड हाउ डू वी यूज देम? वी बेसिकली मेक एन हाइपोथेसिस, फिर हम अपने डाटा जिसके ऊपर हमारा प्रोग्राम वो बग दे रहा है, ठीक है, उस डाटा को हम आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं, उसको रिफाइन करने की कोशिश करते हैं टू एक्चुअली फिगर आउट कि कौन सी वैल्यू के ऊपर हमारा ये एरर आ रहा है, ठीक है, या कौन सी वैल्यू के ऊपर ये सिम्टम आ रहा है जिसकी वजह से हमारा एक्चुअल आउटपुट और एक्सपेक्टेड के अंदर डिफरेंस आ रहा है, ठीक है. दैट्स हाउ वी डू कॉज एलिमिनेशन. ओके जी, सो दैट वाज आवर डिस्कशन ऑन डिबगिंग, एंड अगेन the reason why I discussed debugging was because it is kind of, it follows testing, ठीक है. So in the last two lectures we actually studied testing levels and then we studied different testing techniques. So I thought that I should introduce the topic of debugging as well, क्योंकि debugging actually starts when we start the testing process, ठीक है. जब भी हम वो टेस्टिंग कोई भी मेथड या टेक्निक निकालते हैं उससे कोई भी बग निकलता है तो उसको हमें डीबग भी करना होता है. ओके, सो दैट्स very brief overview of debugging process, and we have seen different strategies that are used to actually debug the code. Okay, now the remaining part of this lecture we will cover that test cases. Okay, you would have heard कि मैंने बार बार टेस्ट केसेस का जिक्र किया था पिछले दोनों लेक्चर में, ठीक है, और वी सेड कि जी हमें टेस्ट केसेस लिखने होते हैं, हमें टेस्ट केसेस के फॉर्मल रिव्यूज करने होते हैं, ठीक है, क्योंकि जब भी आप फॉर्मल टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, व्हेनेवर अ पर्सन परफॉर्म्स फॉर्मल टेस्टिंग, आइदर ही इज अ डेवलपर और अ टेस्टर और एंड यूजर, तो ही विल ऑलवेज डू टेस्टिंग अगेंस्ट दीज टेस्ट केसेस. तो जब आपने फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना आप सिस्टम टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो सिस्टम टेस्टिंग के अंदर वन ऑफ द मेन पार्ट इज कि यू रन ऑल द टेस्ट केसेस, ठीक है, आप सारे टेस्ट केसेस के ऊपर अपने प्रोग्राम को चेक करते हैं और टेस्ट केसेस का एक स्टेटस होता है जिसे हम कहते हैं पास और फेल. अगर सारे टेस्ट केसेस पास हो जाते हैं तो हम कहते हैं यार अच्छा अब हमारे एंड पे सिस्टम फुली टेस्टेड है और एवरीथिंग इज अ पास, नाउ वी विल टेक इट टू द कस्टमर फॉर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ठीक है. So let's see that how do we write these test cases, and we try to figure out few examples of these test cases. Okay जी, before we get to that, let's see what do we have in a test case. ठीक है जी, तो a test case is basically a sequence of steps which basically describes the action to be performed. ठीक है. अच्छा, one of very interesting things is that कि जब भी आप test case लिखते हैं, ठीक है, तो the person who actually writes these test cases, he is an experienced person, ठीक है. For example, if he is a person from the testing team, then he would be somebody who would know the code as well, or who would know design of the code or design of the program as well, and he would be very familiar with the requirements. So usually experienced personnel, they would write these test cases. लेकिन when you write these test cases, तो ये test cases इस तरह से लिखे जाते हैं कि anybody who can run that application, he follows the steps and he would be able to test the program, ठीक है. तो normally जो आपके testers होते हैं, they can be newly hired people or they can be newly trained people, ठीक है, जिनको आप वो steps बताते हैं और कहते हैं इन steps को follow करते जाएं और आप problem को test करते जाएं, ठीक है. So that's why when we write test cases, so we need to very clearly write each and every step that the tester will perform when he will conduct that particular or execute that particular test case. ओके जी, तो हमारे टेस्ट केस के अंदर क्या होते हैं? वी हैव सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, वी हैव टेस्ट डाटा दैट विल बी यूज्ड व्हेनेवर वी रन दैट पर्टिकुलर टेस्ट केस, ठीक है, एंड वी हैव एन एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स, ठीक है. जो भी हमने एक्शन परफॉर्म करना है उसका जो भी एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स होगा वी डू एक्चुअली राइट दैट इन अ टेस्ट केस एज वेल, क्योंकि ये जो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स है ये वही है जो भी हम पीछे डिबगिंग में भी डिस्कस कर रहे थे, एक्सपेक्टेड आउटकम और एक्चुअल आउटकम. तो हम अपने टेस्ट केस के अंदर एक्सपेक्टेड आउटकम लिख देते हैं, ठीक है, और जब भी हमारी आउटकम हमने टेस्ट केस रन किया उससे फर्क आई तो हमें पता लग गया कि यार ये कोई मसला है. ओके जी, और टेस्ट केसेस हम लिखते हैं किसकी बेसिस पे हैं? तो वी राइट दीज टेस्ट केसेस ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है. वी कैन यूज केसेस, और हमारे जो टेक्निकल डिजाइन बाकी जो हमने डॉक्यूमेंट्स हमने सारी चीजें डिस्कस की थी, वी कैन यूज दोज डॉक्यूमेंट्स टू एक्चुअली राइट दीज टेस्ट केसेस. ओके जी, एंड देन देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग दैट देयर कैन बी अ 1-to-1, ये वाली जो नोटेशन है इट्स सेइंग देयर कैन बी अ 1-to-1, 1:1, 1:n और n:1 और n:n रिलेशनशिप बिटवीन रिक्वायरमेंट्स एंड टेस्ट केसेस. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल वी हैव रिक्वायरमेंट R1, तो फॉर रिक्वायरमेंट 1 वी कैन टेस्ट रिक्वायरमेंट 1 विद जस्ट वन टेस्ट केस, ठीक है. तो ये इस केस के अंदर जो हमारा रिलेशन बना वो बना 1-to-1, ठीक है. फिर हम कहते हैं हमारी एक ऐसी रिक्वायरमेंट है R2 जिसके लिए हमें मल्टीपल टेस्ट केसेस लिखने पड़ रहे हैं,
तो इसके अंदर कौन सा वाला है, इट्स बेसिकली 1 to n या 1 to many, बेसिकली 1 to n का ये मतलब है कि देयर कैन बी 1 एंड देयर कैन बी, सो इसके अंदर क्या, एक रिक्वायरमेंट को टेस्ट करने के लिए हमें मल्टीपल टेस्ट केसेस चाहिए, ठीक है। इसी तरह इट कैन ऑल्सो बी ट्रू कि आपकी मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स अगर हों, फॉर एग्जाम्पल हमारी कोई रिक्वायरमेंट है R3, R4, R5, इन तीनों को आप एक ही टेस्ट केस से चेक कर सकते हैं, ठीक है, और दैट इज ऑल्सो ट्रू। इस केस के अंदर हमारा क्या है, इट इज n to 1, ठीक है। इसी तरह आपकी कहते हैं हम R6, R7 और R8 है, इनको टेस्ट करने के लिए हमें ओके अब इसके अंदर जो रिलेशनशिप है दैट इज n to n, ठीक, यानी कि मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स आर टेस्टेड बाय मल्टीपल टेस्ट केसेस और वेयर मल्टीपल टेस्ट केसेस दे आर टेस्टिंग multiple requirements. Okay, so this can be possible relationship between requirements and test cases, ठीक है। Ideally हर functional requirement को आपने टेस्ट करना होता है। कुछ functional requirements हो सकती हैं इतनी बड़ी हो कि उसके अंदर multiple चीज़ें आप कर रहे हो, तो उसके लिए आपको हो सकता है ज़्यादा टेस्ट केसेस लिखने पड़े। कुछ functional requirements हो सकता है बहुत सिंपल सी हो, उसके लिए आपको एक टेस्ट केस ही काफ़ी हो। So we can write multiple test cases for one requirement, we can test multiple requirements by writing one test case, and we can have multiple test cases for multiple requirements, so we can do all these things. Okay ji. And the final thing is that the level of detail specified in test cases will vary depending on the organization, project and also on the test case template used, ठीक है, और on the test management tool being used in the project, ठीक है। यानी कि जो आप डिटेल we will see in the following slides कि आप टेस्ट केस को बहुत ज़्यादा डिटेल में भी लिख सकते हैं, बहुत कम डिटेल में भी लिख सकते हैं। तो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द अप्रोप्रिएट लेवल, ठीक है, तो वी विल सी दैट। लेकिन कुछ चीज़ें जो यहाँ पे कही गई है कि ये जो टेस्ट केस की लेवल ऑफ डिटेल इट वेरीज ऑन डिफरेंट थिंग्स। हो सकता है कि आप डिफरेंट कंपनी में काम करें, उनके डिफरेंट स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। हो सकता है कि जो टेस्टिंग करने वाले लोग हैं दे आर वेरी एक्सपीरियंस पीपल, तो यू डू नॉट एक्चुअली नीड टू राइट लॉट ऑफ स्टेप्स, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट। हो सकता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो कि आपने टेस्ट केसेस को बड़ा एलेबोरेट करके लिखना, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन द project and on the organization. यहाँ आप अगर कोई specific tool use कर रहे हैं तो it can depend on that. Okay जी. So when we do construct these test cases, तो इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, ठीक है? It helps us finding the issues or gaps in the requirements, ठीक है? क्योंकि one of the things that I said, or if I didn't said, I'm saying it now, कि अगर आपके जब आप रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो रिक्वायरमेंट्स लिखने के बाद आप शायद जो दूसरा काम फौरन से कर सकते हैं ना, यू कैन स्टार्ट राइटिंग दीज टेस्ट केसेस, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि जब आपके पास रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं तो यू गेट समथिंग जिसकी बेसिस के ऊपर आपका प्रोग्राम वैलिडेट किया जाएगा, ठीक है। यानी कि व्हेनेवर यू गो टू द कस्टमर, तो कस्टमर विल ऑलवेज टेस्ट द प्रोग्राम अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट्स दैट ही गेव यू एट द बिगिनिंग। तो अगर आप रिक्वायरमेंट्स मिलते ही टेस्ट केसेस लिखना शुरू कर दें तो यू कैन आइडेंटिफाई द गैप्स, ठीक है, और यू वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि यार ये चीज़ कंसिस्टेंट नहीं है इन दोनों रिक्वायरमेंट्स के अंदर, ठीक है, तो दैट इज अ गैप, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक रिक्वायरमेंट कहती है कि रिजल्ट इस तरह के होने चाहिए, जब आप उसका टेस्ट केस लिखते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स में कुछ और चीज़ आती है। व्हेन यू राइट अ टेस्ट केस फॉर अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट, तो वो रिक्वायरमेंट कहती है नहीं एक्सपेक्टेड रिजल्ट इस तरह का होना चाहिए, एंड इफ दीज टू स्टेटमेंट्स आर कंट्राडिक्टरी, तो जब आप टेस्ट केसेस लिख रहे हैं तो यू हैव आइडेंटिफाइड अ गैप, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू फिगर आउट दीज थिंग्स। ओके जी, दे ऑल्सो हेल्प अस इन टेक्निकल डिज़ाइन, ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स के बाद आपकी डिज़ाइन की स्टेज आती है, तो अगर आप टेस्ट केसेस लिखना शुरू कर दें तो इट हेल्प्स इन डिज़ाइनिंग द प्रोडक्ट एज वेल, ठीक है जी। तो एज द टेस्ट केस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वुड मेक टेस्टर टू थिंक थ्रू डिफरेंट पॉसिबल पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिनेरियोज, दैट्स हाउ यू एक्चुअली फाइंड दोज गैप्स, ठीक है। इट इज द टेस्ट केसेस अगेंस्ट विच टेस्टर विल वेरीफाई द एप्लीकेशन, ठीक है। आपके जब टेस्ट केसेस लिखे होंगे तो उसी के अगेंस्ट आपका टेस्टर आइडेंटिफाई करेगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह काम कर रही है कि नहीं कर रही। सो दिस इज द सोर्स अगेंस्ट विच द टेस्टर वुड नो कि देयर इज अ प्रॉब्लम और नॉट, ठीक है जी। और द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस टू बी क्रिएटेड डिपेंड्स ऑन द साइज, कॉम्प्लेक्सिटी एंड द टाइप ऑफ टेस्टिंग बीइंग परफॉर्म्ड। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने अभी दो चीज़ें देखी हैं। एक तो मैंने आपसे कहा कि हाउ डू वी नो कि हाउ मच डिटेल टू पुट इन अ टेस्ट केस, ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ डू वी नो हाउ मेनी टेस्ट केसेस वी हैव टू राइट, ठीक है। और उसके हमने देखा था कि डिटेल का आंसर क्या था कि डिपेंड्स ऑन वेरियस थिंग्स, इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन द कस्टमर, ठीक है। और अगर आप कोई टेस्टिंग टूल यूज़ करें उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो राइटिंग द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है
इट डिपेंड्स ऑन द, कोई एक सर्टन नंबर नहीं है कि मैं कहूँ कि हर सॉफ्टवेयर के लिए 100 टेस्ट केस होने चाहिए. इट डिपेंड्स ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम. ठीक है, if there is a very complex problem which the development time it spans maybe in 2-3 years, तो उसकी टेस्टिंग भी बहुत डिटेल्ड होगी. ठीक है, whereas if there is a problem जो कि आपने 2 महीने में डिलीवर करनी है, which is a simple problem or a smaller problem, तो उसकी टेस्टिंग भी उसी लिहाज से छोटी होगी. ठीक है, तो it depends on the complexity of the problem and second it depends on the type of testing. ठीक है, ओके जी. Okay, this is a very quick example. For example, you have an ATM machine, and this is a very common example. You can find it on various websites on the internet. When you have to write the test cases for an ATM, ठीक है, तो ATM के अंदर क्या क्या टेस्ट केसेस होते हैं, क्योंकि the reason why I am giving an example of an ATM because it is a very common product और हर कोई ATM यूज करता है. ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले चीज जो आप ATM के अंदर जाके टेस्ट करते हैं, दैट इज सक्सेसफुल कार्ड इंसर्शन. ठीक है, कि आपका कार्ड जो है, क्योंकि आप ATM के अंदर कार्ड डिफरेंट तरह से डाल सकते हैं. ठीक है, अगर आपने कार्ड उल्टा डाल दिया तो ATM एरर दे देता है. अगर आपने कार्ड को चिप की डायरेक्शन उल्टी डाल दी तो फिर वो एरर देता है. तो सबसे पहली चीज जो आपको टेस्ट करनी है whenever you make an ATM is that whether it gives an error when the card is not inserted properly. तो हम कहते हैं उसका हम एक टेस्ट केस लिखते हैं जिसका हमने नाम रख दिया सक्सेसफुल कार्ड इंसर्शन. ओके जी. और टेस्ट केस नंबर 2 क्या है कि अनसक्सेसफुल ऑपरेशन ड्यू टू रॉन्ग एंगल कार्ड इंसर्शन. ठीक है, थर्ड क्या कर दिया, अनसक्सेसफुल ऑपरेशन ड्यू टू इनवैलिड अकाउंट कार्ड. ठीक है, द फोर्थ वन इज सक्सेसफुल एंट्री ऑफ पिन नंबर. ठीक है, जब आपका कार्ड पहले वाले तो टेस्ट केसेस क्या चेक कर रहे हैं कि कार्ड आपने सही डाला है, कार्ड की ओरिएंटेशन ठीक है, आपने ATM कार्ड ही डाला है या कोई और कार्ड डाल दिया. दीज आर द थिंग्स दैट वी आर टेस्टिंग. एट नंबर 4 व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेस्ट इज कि द पिन नंबर दैट द यूजर एंटर्स वेदर दैट इज करेक्ट और नॉट. ठीक है, अच्छा, अब टेस्ट केस नंबर 5 क्या है, अनसक्सेसफुल ऑपरेशन ड्यू टू रॉन्ग पिन नंबर एंटर्ड 3 टाइम्स. ठीक है, जिस देयर इज अ लिमिट टू व्हिच यू कैन एंटर द रॉन्ग पिन नंबर. ठीक है, वंस यू रीच दैट लिमिट तो मे बी योर अकाउंट इज ब्लॉक्ड और द ATM कार्ड इज बेसिकली taken temporarily and then you have to go to the bank to actually get it released. Okay जी, then the options that come in the ATM जिसमें हो सकता है language selection की option हो, then there are different options जैसे आपको balance inquire करना है या आपको cash withdraw करना है या you have to transfer some funds, तो you have to write the test cases for all the functionalities that the ATM provides. ठीक है, so this slide basically इसके अंदर अगर आप test cases के हमने text नहीं लिखा, so we have not actually written the steps that are involved in these individual test cases. We will see how do we actually write them, but this is just an example which says कि आपको अगर आप ATM आपने implement किया तो what are the test cases that you have to write for that. Okay, next we have an example of a web page. So let's say we have you've made a web page where the user has to authenticate himself first. Okay जी, so what are the things that we need to test if we are just testing the authentication of the user, कि हमारा जो वेब पेज हमने बनाया है वो यूजर को ऑथेंटिकेट करता है प्रॉपर्ली कि नहीं करता ऑन द बेसिस ऑफ द यूजर नेम एंड पासवर्ड. ठीक है, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी वुड डू, वी वुड टेस्ट विदाउट एंटरिंग एनी यूजर नेम एंड पासवर्ड. ठीक है, यानी कि हमारी अगर ये 2 फील्ड्स हैं, ठीक है, लेट्स से कि दिस इज आवर पेज और इसके अंदर ये 2 फील्ड्स हैं और नीचे हमारा एक बटन है जो कि कहता है लॉग इन. ठीक है, इधर हमने डालना है यूजर नेम और इधर हमने डालना है पासवर्ड. ठीक है, तो पहली चीज हम क्या करेंगे, इन दोनों फील्ड्स को एम्प्टी छोड़ के लॉगिन का बटन दबाएंगे. ठीक है, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि यूजर नेम डालेंगे और पासवर्ड खाली छोड़ेंगे, फिर हम पासवर्ड डालेंगे, यूजर नेम खाली छोड़ेंगे. ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दैट वी विल ट्राई टू टेस्ट दिस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी. ठीक है, तो अगर हम इस पूरे को कहें तो हम शायद टेस्टिंग क्या कर रहे हैं, हमारा टेस्ट केस क्या है कि वी आर टेस्टिंग कि जो हमारी ऑथेंटिकेशन है, टेस्ट केस फॉर यूजर ऑथेंटिकेशन. फिर तीसरा हम क्या करेंगे कि यूजर नेम एंड पासवर्ड शायद गलत डालेंगे, फिर यूजर नेम सही डालेंगे, पासवर्ड गलत डालेंगे. ठीक है, फिर यूजर नेम गलत डाल के पासवर्ड सही डालेंगे एंड देन फाइनली विल ट्राई कि हम यूजर नेम और पासवर्ड दोनों सही डालें तो फिर लॉगिन होता है कि नहीं होता. ओके जी, सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स दैट वी वुड ट्राई. और अगर इसके अंदर आप देखें नीचे 1-2 चीजें और जो इंटरेस्टिंग लिखी हुई है कि यू एंटर लॉन्ग यूजर नेम एंड पासवर्ड दैट एक्सीड द सेट लिमिट. ठीक है, हम यानी कि ये भी चेक कर रहे हैं कि अगर हमने यूजर नेम या पासवर्ड पे एक लिमिट रखी थी कि 8 कैरेक्टर या 10 कैरेक्टर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए पासवर्ड. ठीक है, तो उस लिमिट से अगर आप लंबा डालते हैं फिर क्या करता है. ठीक, तो द टेस्टिंग इट नीड्स टू बी दैट थॉरो. ठीक है, ताकि आप जब कस्टमर को कोई चीज देने जाएं तो यू आर 100% श्योर कि आपने जो फंक्शनैलिटी करनी थी वो आपने कर ली है, ताकि एंड यूजर कोई भी गलत चीज डाल दे तो इट वुड नॉट गेट थ्रू. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली डू टेस्टिंग. Okay, there are few terminologies and then we will look at discuss कि हम टेस्ट केसेस एक्चुअली लिखते किस तरह. ठीक है, यानी कि हमारे पास स्पेसिफिकेशन है हाउ डू वी गो टू टेस्ट केसेस.
ओके जी, जो आपने शायद ये लफ्ज अक्सर सुना हो जिसको हम कहते हैं टेस्ट स्क्रिप्ट्स, ठीक है। तो व्हाट आर दीज टेस्ट स्क्रिप्ट्स? जब भी आप अपने टेस्ट केसेस को डॉक्यूमेंट कर देते हैं, ठीक है, तो वो जो डॉक्यूमेंटेड टेस्ट केसेस हैं दे आर रेफर्ड टू एज टेस्ट स्क्रिप्ट्स। यानी कि फॉर एग्जांपल यू हैव रिटन अ होल डॉक्यूमेंट व्हिच हैज ऑल द टेस्ट केसेस फॉर योर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे दिस इज द टेस्ट स्क्रिप्ट, ठीक है। क्योंकि टेस्ट केसेस हमें क्या बताते हैं, व्हाई वी आर कॉलिंग इट स्क्रिप्ट, क्योंकि हमें टेस्ट केसेस स्टेप्स बताते हैं कि किन स्टेप्स को एग्जीक्यूट करना है हमने अपने प्रोजेक्ट को वैलिडेट करने के लिए, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट कि दिस इज अ स्क्रिप्ट बिकॉज इट टेल्स अस स्टेप वाइज व्हाट वी नीड टू डू। ओके जी, then the second word that is very common or that is used when we talk about testing a program, that is called test suites, ठीक है, or test suite. Okay, what are these? All the related test cases or the test scripts are collectively referred to as test suite. Okay, यानी कि related की क्या है कि जितने भी फॉर एग्जाम्पल सिमिलर फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने के लिए आपने जितने भी टेस्ट केसेस लिखे हैं, फॉर एग्जाम्पल वेब पेजेस की सिक्योरिटी को टेस्ट करने के लिए, ठीक है, तो उसको हम टेस्ट सूट कह देते हैं, ठीक है। Okay, so these are the two terms, test script and test suite, which I thought I should tell you what they are. Okay ji, now how do we write better test cases? Yeah, how we can say that we have written a test case which is good enough, okay? So there are few steps which help us ensure that we have not missed anything when we write a test case. Okay, number one is requirement IDs being covered in the test case, ठीक है। जब भी आप टेस्ट केस लिखें तो ऑलवेज ट्राई टू ट्रेस इट बैक टू द रिक्वायरमेंट, कि ये आप जो टेस्ट केस लिख रहे हैं ये किस रिक्वायरमेंट को टेस्ट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप इस तरह से लिखेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि यूज़र की हमने जितनी रिक्वायरमेंट यूज़र ने हमें कही थी वो हमने टेस्ट करनी है कि नहीं गई, ठीक है। नंबर टू, टेस्ट कंडीशंस एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स बीइंग एक्सरसाइज्ड इन द टेस्ट केस, ठीक है। यानी कि जो कंडीशंस के अंदर ये टेस्ट केस रन करना था और जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आने चाहिए थे इस टेस्ट केस के रन करने के, हमें वो भी लिखने चाहिए टेस्ट केस के अंदर। Okay, and number three, initial setup required for executing the test script, ठीक है। यानी कि for example आपको प्रोग्राम को कोई certain condition में लाना था, ठीक है, या कोई हार्डवेयर साथ जोड़ना था, ठीक है, तो all the initial setup that you need before you actually start executing those test cases, you should do that before you actually commence testing, ठीक है। फिर if there are some post execution activities, ठीक है, for example delete the application user, ठीक है, वेब एडमिन आफ्टर टेस्ट एग्जीक्यूशन इज कंप्लीट, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कोई टेम्परेरी डाटा डाला है सिर्फ अपने इसको टेस्ट करने के लिए, और जब आप कस्टमर को प्रोडक्ट डिप्लॉय करने जा रहे हैं तो दैट शुड नॉट बी देयर, तो आप उसको डिलीट कर दें। यानी कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने पोस्ट एग्जीक्यूशन जो आपने स्टेप्स करने हैं यू ऑलवेज राइट देम एज वेल। ओके जी, देन इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने टेस्ट केस की प्रायोरिटी बताएं कि वेदर इट्स अ हाई प्रायोरिटी टेस्ट केस, वेदर इट्स अ मीडियम प्रायोरिटी टेस्ट केस और इट्स द प्रायोरिटी इज लो। इसका फायदा क्या होगा, और नॉर्मली हाउ डू वी डिफाइन प्रायोरिटी? अगर तो आप एक टेस्ट केस रन कर रहे हैं विच कॉरिस्पॉन्ड्स टू अ रिक्वायरमेंट जो कि विच वाज अ डिमांड फ्रॉम द कस्टमर, या उसकी रिक्वायरमेंट की प्रायोरिटी हाई थी, ठीक है, उसके बगैर कस्टमर सोल्यूशन कह रहा था मैंने लेना ही नहीं है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल विदाउट दिस रिक्वायरमेंट, so the test cases who actually check the functionality of that particular requirement, their priority will be high, ठीक है। और हम यही करते हैं कि whenever we execute those test scripts, तो जिन भी टेस्ट केसेस की प्रायोरिटी हाई होती है we try to execute them first. Okay. At number 6, we write the complexity of the test case. It will help to identify and filter the test cases based on complexity, ठीक है जी। Approximate time required for executing the test case. So it is also advisable कि आप लिख दें कि इस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने में आपको कितनी देर लगेगी, 5 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे, 1 मिनट लगेगा, it is basically advisable. Then we write the test steps. Test steps का जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि we will see the example कि आप टेस्ट स्टेप बहुत कम भी लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी लिख सकते हैं, but when you are working in a company तो you would have a standard that you would follow कि कितने डिटेल और कितना एलेबोरेट करना है आपने एक पर्टिकुलर टेस्ट केस को। ओके जी, देन वी नीड टू राइट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स यही मैंने आपको कहा था, और एक्चुअल रिजल्ट्स जब भी आप बग निकालते तो इन दो की बेसिस पे हम निकालते हैं। हमने कहा कि जी एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये थे, एक्चुअल रिजल्ट ये है, तो देयर इज अ गैप, देयर इज अ प्रॉब्लम, तो हम कहते हैं जी ओके वी हैव अनकवर्ड अ बग एंड वी रिपोर्टेड टू द डेवलपमेंट टीम। ओके, देन वी राइट द टेस्ट स्टेप रिजल्ट। एट टाइम्स व्हाट वी कैन डू, अगर हम बहुत एलेबोरेट फॉर्म में टेस्ट केसेस लिख रहे हैं तो हम अपने हर टेस्ट स्टेप का भी रिजल्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस क्लिक के बाद ये होना चाहिए, इस डाटा एंट्री इस फील्ड के अंदर मैंने डाटा डाला उसके बाद ये होना चाहिए, तो वी राइट द रिजल्ट्स ऑफ ईच स्टेप एज वेल इफ यू नो वी आर राइटिंग वेरी डिटेल।
फिर समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टेस्ट केस का वर्जन नंबर आप लाजमी लिखें, ठीक है। व्हाट इट डज इज वो आपको बताता है कि इफ समबडी मेक अ चेंज इन द टेस्ट केस, ठीक है, तो यू एक्चुअली गेट टू नो कि वो चेंज किसने किया था और कब किया था। एंड टेस्ट केस क्रिएशन टाइम स्टैम्प, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हेनेवर यू क्रिएट अ टेस्ट केस तो यू टाइम स्टैम्प इट, व्हिच एक्चुअली टेल्स अस कि ये टेस्ट केस कब बना था, ठीक है। देन यू राइट द रिवीजन हिस्ट्री, द टेस्ट केस स्टेटस, ठीक है। टेस्ट केस स्टेटस क्या है कि ये कंप्लीटली आपने बना लिया है या इट्स अ ड्राफ्ट वर्जन या इट्स एक्चुअली बीइंग रिव्यूड, तो यू राइट दैट एज वेल। फिर आप टेस्ट केस एग्जीक्यूशन टाइम स्टेप्स भी लगाते हैं। उसका क्या फायदा होता है कि टेस्ट केस आपका बना लेट्स से 1 जनवरी को था, आपने एग्जीक्यूट 3 मार्च को किया, आपने उसकी बेसिस के ऊपर कोई बग निकाले, फिर आपने उसको 15 मार्च को किया, सो यू राइट ऑलवेज गिव टाइम स्टैम्प्स व्हेनेवर यू एग्जीक्यूट दीस टेस्ट केसेस, ठीक है। और इफ यू अनकवर सम बग्स तो यू हैव अ फील्ड वेयर यू राइट एसोसिएटेड डिफेक्ट्स, ठीक, यानी कि आपने जब भी कोई बग अनकवर किया तो यू राइट दैट। And then finally, it's always advisable if you're working in a very big company which has multiple projects, or you as a tester are actually testing multiple projects, so it is always a good idea to include these 2 fields, जिसके अंदर आप अपने project का नाम लिखेंगे क्योंकि इस project से ये test case belong करता है, और application का नाम लिखेंगे। So these are the different things which should be part of test cases, ठीक। लेकिन you might come across कि आपके test cases शायद इतने elaborate नहीं होते, मतलब few things which are always required, जिस तरह आपका टेस्ट डाटा लाजमी होना चाहिए, your test steps should be there, your expected results and actual results should be there, I mean and your requirement कि किस requirement को आप टेस्ट करें, it should be there। तो कुछ चीज़ें जिनके बगैर टेस्ट के शायद कंप्लीट नहीं होता, ठीक है, लेकिन these are the things which ensure कि अगर आप ये सारी चीज़ें डालेंगे तो that ensures that you have written a test case which is very well written। ओके जी, so how do we write test cases? मैंने आपसे कहा था कि टेस्ट केसेस हम कब लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, whenever we have set of requirements, ठीक है। तो we can use requirements, we can use use cases and we can use other design documents to write test cases। okay जी, so what do we need to do in order to write test cases? First thing that we need to do, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हमने कहा था कि what is the successful strategy to write or how do we ensure that we implement a successful test strategy। उसके अंदर one of the things was कि as a software tester you need to develop understanding of the requirements, ठीक है। जब तक you would not have an understanding or a good understanding of what the customer asked you to do, उस वक्त तक आप टेस्टिंग अच्छी तरह से नहीं कर सकते, ठीक है। So what do we do? First understand the business requirements, get the big picture of what is being achieved from business perspective, ठीक है। Read and understand how business requirements are exploded into functional requirements, ठीक है। So you should know कि how the transition took place, कि एक्चुअल कस्टमर ये काम आपसे क्यों करवाना चाह रहा है और उसकी बेसिस के ऊपर क्या क्या फंक्शनैलिटी आपको इंप्लीमेंट करनी है, तो यू शुड लर्न दैट ट्रांजिशन, ठीक है। गो थ्रू टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड यूआई डिजाइन डॉक्यूमेंट टू गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स गेट ट्रांसलेटेड इनटू एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी। वंस यू डू दिस एक्सरसाइज obviously you will get at least few questions or you may even discover few gaps in the requirements, ठीक है। क्योंकि आप जब इस पूरे यू आर एक्चुअली डूइंग अ इंस्पेक्शन और यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू गेन योर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन उसके साथ साथ एक और फायदा क्या हो रहा है कि जब आप अपने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को इतनी डिटेल में पढ़ रहे हैं तो यू कैन आइडेंटिफाई सम गैप्स एज वेल, ठीक है। तो व्हाट यू शुड डू देन, रीच आउट टू बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है, एंड बिजनेस यूजर जिन्होंने रिक्वायरमेंट गैदर की है, एंड गेट योर क्वेश्चंस आंसर्ड। इफ यू सी कि देयर इज अ प्रॉब्लम तो यू गो टू द पर्सन हु हैज एक्चुअली डन दैट स्टफ, ठीक है, एंड देन ही इज द पर्सन हु वुड गाइड यू कि नो नो दिस इज एक्चुअली लाइक दैट, एंड देन ही वुड क्लैरिफाई यू, ठीक है। Then finally what you do is you identify the test scenarios, test conditions and expected results. So for each requirement you basically do that. So once you have signed off on test scenarios, test condition, expected results, start creating test cases, ठीक है। यानी कि जब आपने टेस्ट सिनेरियोज बना लिए, टेस्ट कंडीशंस बना ली, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स बना लिए एंड यू गेट देम अप्रूव्ड, उसके बाद आप टेस्ट केसेस लिखना शुरू कर दें, ठीक है। सो आपने बेसिकली करना क्या है, यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि जो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स थी हाउ दे आर एक्चुअली बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। एंड फॉर दैट यू कैन यूज डिफरेंट डिजाइन डॉक्यूमेंट्स एज वेल। जिस तरह इसमें एक चीज़ कही कि आप यूजर इंटरफेस का जो डिजाइन है वो यूज कर सकते हैं। अनदर थिंग जो कि हमने एक तरह की डायग्राम हमने पढ़ी थी जिनको हम DFDs कहते थे, कि DFDs बताता है कि जो आप कस्टमर के बिजनेस प्रोसेसेस हैं वो एक्चुअली जब हम अपने सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट करेंगे तो वो कैसे लगेंगे, ठीक है। तो दे आर अ वेरी गुड टूल ऑफ डेवलपिंग दैट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शनैलिटीज विच आर और विच वुड बी देयर इन द फाइनल प्रोडक्ट। ओके जी,
And what are the design documents? ठीक है जी. Also consider verifying the technical aspects mentioned in the technical and look and feel aspects mentioned in the UI design documents. ठीक है. Some of the technical aspects like field length, validation, data structure will be documented in detail in technical specification. ठीक है जी. So during test case construction, one has to incorporate additional validations as well. So when we are through these two things, जिसको एक तो हमने कहा कि जी हमने requirements की भी understanding ले ली, we have gone through all the design documents as well. तो इसकी वजह से हमें फ़ायदा क्या हो गया कि now we have an understanding of the product, ठीक है? और now we are in a position to write test cases. So the next question is that how do we write these test cases then? ठीक है? सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, whatever test cases we write, we get them reviewed. और रिव्यू किससे कराना है? वी हैव टू गेट देम रिव्यूड बाय द बिजनेस एनालिस्ट और द रिक्वायरमेंट इंजीनियर, क्योंकि दोज आर द पीपल हु हैव एक्चुअली हैड इंटरेक्शन विद द एंड यूजर्स, विद द कस्टमर. तो दे कैन एक्चुअली से कि हाँ जी दिस इज अ थिंग दैट वी विल टेस्ट इन द एंड. ओके, वी हैव टू डिसाइड ऑन द डिटेल ऑफ ईच टेस्ट केस. और वी दिस थर्ड लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि राइट टेस्ट केसेस इन प्लेन इंग्लिश. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप टेस्ट केस लिखें, वाई वी आर सेइंग प्लेन इंग्लिश, कि इसके अंदर टेक्निकल जार्गन नहीं होनी चाहिए. उसकी वजह क्या है कि जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि एट टाइम्स टेस्ट केसेस लिखने वाला कोई और होता है और टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने वाला कोई और होता है. ठीक है, तो यू शुड राइट देम इन वेरी सिंपल स्टेप्स, ताकि जो भी बंदा को टेस्ट स्क्रिप्ट मिले, ही कैन लुक एट दैट स्क्रिप्ट एंड इफ ही इज एबल टू रन द प्रोग्राम, ही शुड बी एबल टू टेस्ट द प्रोग्राम. ठीक है, सो दैट्स व्हाट यू डू. एंड देन देयर इज कांसेप्ट ऑफ रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स. ठीक है, ये होती क्या है? आई विल टेल यू इन अ बिट कि आप करते क्या है कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ लिस्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, और हम इस तरह का एक टेबल बना लेते हैं. हम कहते हैं जी इस कॉलम के अंदर हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, R1, R2, R3, R4. लेट्स से हमारे पास ये 4 रिक्वायरमेंट्स हैं. फिर हम क्या करते हैं कि हम इनके आगे जो जो टेस्ट केसेस इन रिक्वायरमेंट्स को टेस्ट कर रहे हैं, जैसे हमने कहा जी TC1 जो है वो R1 को टेस्ट कर रहा है, R2 के लिए TC2, TC3 और TC4 चाहिए. इसी तरह हम कह देते हैं TC5 इसके लिए चाहिए और TC5 ही इसके लिए चाहिए. इसका क्या फ़ायदा होता है रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बनाने का? इससे हमें ये पता लग जाता है कि कौन सी रिक्वायरमेंट को कौन सा टेस्ट केस टेस्ट कर रहा है. क्योंकि ये अभी हमने पीछे भी देखा था कि टेस्ट क्या, वो जो स्लाइड थी जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था हाउ टू राइट बेटर टेस्ट केसेस, उसके अंदर एक चीज़ थी कि आप टेस्ट केस जब लिख रहे हैं तो उसके अंदर वो रिक्वायरमेंट का नंबर भी लिखते हैं जो कि जिस रिक्वायरमेंट को आप एक पर्टिकुलर टेस्ट केस के अंदर टेस्ट कर रहे हैं. तो इस टेबल को बनाने का क्या फ़ायदा होगा कि व्हेनेवर यू लुक एट दिस टेबल तो आपको फ़ौरन से पता लग जाएगा अच्छा R1 को ये वाले टेस्ट केस टेस्ट कर रहे हैं. और एक और फ़ायदा क्या होता है कि इसके अंदर एक कॉलम हम बनाते हैं जिसके अंदर हम इसका स्टेटस लिख देते हैं. स्टेटस हमें ये बताता है, अगर हम इसके आगे पास लिख दें तो उसका ये मतलब होगा कि जो टेस्ट केस 1 था वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है और हमने रिक्वायरमेंट 1 अचीव कर ली है. So this is the benefit of making these requirement traceability matrix. This is one of the benefit कि आपको देखते ही पता लग जाता है कि requirement 1 जो थी उसका टेस्ट केस लिखा जा चुका है, वो पास हो गया या रिजेक्ट हो गया या इट इज असाइन टू अ डेवलपर और व्हाटएवर. सो यू एक्चुअली नो कि व्हाट इज हैपनिंग और हाउ मेनी रिक्वायरमेंट्स यू हैव एक्चुअली कवर्ड एंड हाउ मेनी रिक्वायरमेंट्स दे हैव एक्चुअली बीन नॉट येट सेटिस्फाइड. ठीक है, तो इसको दिस इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ मेकिंग दिस रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स. ओके जी. Now another thing is that you need to provide the test data within the test cases. ठीक है, जो भी टेस्ट डाटा आपको चाहिए उस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने के लिए you need to include that in the test case. टेस्ट केस वर्जन कंट्रोल, ये मैंने जिस हमने पहले भी डिस्कस किया था कि you need to write the version number. अगर आपने टेस्ट केसेस को कोई भी बंदा रिवाइज करता है तो you need to give it a new version number and you need to prioritize the test cases. And again this prioritization it comes from the requirements. If it's a high priority requirement and you testing it in a particular test case तो उस test case की भी priority high होगी. You also need to write the prerequisites and clean up sections. जैसे हमने पहले कहा था कि if you need to do some setup before you actually execute a particular test case तो you need to do that. इसी तरह post execution activities है, if you have created some dummy users and you have to delete them तो वो भी आपको करने. ठीक है, तो you basically this is kind of a recap of what we already covered, those detailed points. कि you need to do that whenever we write these test cases. Okay, this is a very quick example of how we write a test case. ठीक है, जिस तरह हम सबसे पहले तो अपने टेस्ट केस को एक यूनिक आईडी देते हैं. ठीक है, जिस तरह हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि आप हर रिक्वायरमेंट को यूनिक आईडी देते हैं और जब आप रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बनाते हैं ना तो उसके अंदर भी आप पूरी रिक्वायरमेंट के नाम नहीं लिखते, हम सिर्फ लिखते हैं R1 और यहाँ पे टेस्ट केस का भी जो यहाँ पे हमने टाइटल दिया है या उसको आईडी दिया है, TC1 दे दिया, तो विल राइट दैट. ठीक है, तो ऑलवेज असाइन अ
ID to every test case you write, और उसका कोई टाइटल भी होना चाहिए, ठीक है. Then we write the purpose of the test case. और purpose क्या बताता है? It's basically short sentence or two about the aspect of the system that is being tested. If this gets too long, break the test case up and put more information into the feature description. ठीक है. Now this is very interesting, this line. कि अगर आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं और वो ज़्यादा लंबी हो रही है, ठीक है, जैसे हमने कहा कि 1 या 2 लाइनों की होनी चाहिए, बट इफ़ इट्स लॉन्गर देन दैट, तो इट मीन्स कि आप एक टेस्ट केस के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें टेस्ट करना चाह रहे हैं. तो दिस इज़ अ गाइड कि इसको यूज़ करके अगर आपकी डिस्क्रिप्शन लंबी हो रही है तो यू डिकम्पोज अ टेस्ट केस इनटू मल्टीपल टेस्ट केसेस, ठीक है. देन यू हैव प्रीरेक्विजिट्स. प्रीरेक्विजिट्स क्या कहते हैं? द assumptions that must be met before the test case can be run, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लॉग्ड इन, ठीक है, गेस्ट लॉग इन अलाउड, या यूजर टेस्ट यूजर एग्जिस्ट, ठीक है. यानी कि अगर कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं, आपको कोई डमी यूजर्स पहले बनाने हैं या कोई हार्डवेयर सेटअप करना है पहले सॉफ्टवेयर के साथ, तो यू मेंशन दोज थिंग्स. फिर यू हैव योर टेस्ट डाटा. टेस्ट डाटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जिस तरह हमने वो ऑथेंटिकेशन वाली एग्जांपल की, उसके अंदर आपका टेस्ट डाटा क्या है? द यूजर नेम एंड द पासवर्ड, ठीक है. तो टेस्ट डाटा शुड ऑलवेज बी मेंशन कि कोई एक पर्टिकुलर टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने के लिए व्हाट इज द डाटा दैट यू नीड, ठीक है. एंड देन कम्स द स्टेप्स. स्टेप्स आपको क्या बताते हैं? स्टेप्स टू कैरी आउट द टेस्ट. फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर अगर आप स्टेप्स देखें, नंबर 1 इज विजिट द लॉगिन पेज, एंटर यूजर आईडी, एंटर पासवर्ड, क्लिक लॉगिन, सी द टर्म्स ऑफ यूज पेज, क्लिक एग्री रेडियो बटन, click submit button, see personal page, verify that the welcome message is correct username. Okay, अब अगर आप इसके अंदर ये steps देखें, they are very simple. Anybody who knows how to use a computer और उसको पता है कि आपकी कौन सी वेब पेज है जिस पे उसने जाना है, he can basically use these steps. ठीक है. तो the steps जो कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, they should be written in plain English. This is what we mean by that. ठीक है, कि they should be very clearly specified ताकि कोई भी novice है या कोई भी untrained न्यूली हायर्ड बंदा है वो भी आपके प्रोग्राम को टेस्ट कर सके. सो दिस इज द गोल. एंड इफ देयर आर एनी नोट्स एंड क्वेश्चन एसोसिएटेड टू अ टेस्ट केस, यू कैन आल्सो मेंशन देम इन अ सेपरेट फील्ड. ठीक है जी. ओके जी. नाउ जिस तरह हमने पहले कहा था कि आपने टेस्ट केसेस लिख लिए, ठीक है, अब उसको रिव्यू भी करना है. ठीक है, तो गेट योर टेस्ट केसेस रिव्यूड बाय बिजनेस एनालिस्ट और बिजनेस यूजर्स. ठीक है, इट इज ऑलवेज गुड टू गेट इनपुट फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स. ठीक है, क्योंकि दीज पीपल हु आर एक्चुअली, फॉर एग्जाम्पल आप फाइनेंस के मॉड्यूल की टेस्टिंग करने जा रहे हैं. ठीक है, नाउ यू शुड गेट द टेस्ट केसेस रिव्यूड बाय अ फाइनेंस एक्सपर्ट, क्योंकि उसको पता है कि कौन सी रिपोर्टिंग के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जो क्या क्या आपने देखनी है कि ये चलेंगी कि नहीं चलेंगी. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप टेस्ट केस लिखें तो उसको रिव्यू करा लें कि whether you have mentioned everything that should be tested or you have missed few things. ठीक है, it is better to get review comments from those analysts and users before testing starts rather than they pointing out at the deficiencies of your test cases during acceptance testing or post implementation. ठीक है, why we have a separate slide which says test case review, क्योंकि ये जो review का process है ना, this is very central before you actually get the product to the customer. अगर आपने प्रोडक्ट डिप्लॉय कर दी और उसके बाद आपको पता लगा यार ये जो टेस्टिंग हमने की थी इसमें ये प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, तो देन दैट्स अ सीरियस इशू. ठीक है, तो यू शुड रिव्यू देम वेल बिफोर यू एक्चुअली परफॉर्म टेस्टिंग. ठीक है, उसका फायदा क्या होगा कि आपको उसी वक्त पता लग जाएगा कि इफ यू हैव टू मेक सम चेंजेस इन द टेस्ट केसेस. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू गेट योर टेस्ट केसेस रिव्यूड. ओके, सो वो जो क्वेश्चन था जो हमने शुरू में रेज किया था कि हाउ डिटेल शुड बी अ टेस्ट केस. ठीक है, the test case steps should be as detailed as possible and should be written at high level. High level का क्या मतलब है? वही abstract यानी कि plain English के अंदर होनी चाहिए. Writing detailed steps is very important considering the fact that the same person who wrote the test cases may not always execute the test case. अगर तो पूरी कंपनी के अंदर सिर्फ मैं ही हूँ जो टेस्ट केसेस लिखता है और मैं ही हूँ जो टेस्टिंग करता है, तो मैं उसके अंदर जो भी लिख दूँ मुझे अगली दफ़ा भी पता लग जाएगा. ठीक है, लेकिन नॉर्मली what happens is कि the person who actually write those test cases, he is not the person who will execute them. तो आपको उसको ऐसी लैंग्वेज में लिखना है which is understandable to everybody. If the test cases are not very detailed, then the person who executes the test case for the first time will not be able to validate the system thoroughly, as he or she might have not gone through the requirements and will test only as per the test case steps. और एक और चीज़ क्या है कि क्योंकि जब जो बंदा टेस्ट केस लिखता है ही डेवलप्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, जो हमने कहा था कि बिजनेस रिक्वायरमेंट्स फंक्शनल में कैसे ट्रांसलेट होती हैं, तो द टेस्ट पर्सन हु राइट्स द टेस्ट केसेस ही डेवलप्स दैट अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, लेकिन जब आपने टेस्ट स्टेप्स लिखने हैं तो वो आपने जेनेरिक इसलिए लिखते हैं कि वो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक्चुअली स्टेप्स के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही हो. ठीक है, और जो बंदा टेस्ट एग्जीक्यूट कर रहा है
उसको वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की जरूरत ना हो, ठीक है। सो दिस इज व्हाई द टेस्ट स्टेप्स दे शुड बी डिटेल्ड एंड शुड बी रिटन इन वेरी सिंपल हाई लेवल लैंग्वेज। ओके जी, नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल कि एक ही टेस्ट केस को 2 लेवल ऑफ डिटेल पे लिखा हुआ, उसमें आपको डिफरेंस कैसा लगता है। ओके जी, अब अगर आप इस एग्जांपल पे देखें, हम जो टेस्ट केस हमारा है वो एक्चुअली हम चेक करना चाह रहे हैं कि जब आप लॉगिन का बटन प्रेस करते हैं वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड डाल के, तो आपके होम पेज पे जाता है कि नहीं जाता। जब आप लॉग आउट प्रेस करते हैं तो आपको दोबारा लॉगिन पेज डिस्प्ले करता है कि नहीं करता, ठीक है। सो दिस इज द टेस्ट केस दैट वी आर राइटिंग हियर। और ये जो 2 आप मेन बुलेट्स देख रहे हैं, इसके अंदर दैट सेम टेस्ट केस इज रिटन इन लेस डिटेल, यानी कि कम डिटेल है इसके अंदर, और इसी के अंदर वी हैव अ डिटेल्ड वर्जन ऑफ द सेम टेस्ट केस। ओके जी, अब अगर आप पहले वाले केस को देखें तो उसके अंदर हमने सिंपल सा पहला स्टेप में क्या लिखा हुआ है, वी हैव सेड कि यू लॉग इन टू टेस्ट द एप्लीकेशन विद वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। इसी तरह हमने कहा है कि जी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो है उसके अंदर होम पेज इज डिस्प्लेड, ठीक है। देन यू हैव स्टेप नंबर 2, उसके अंदर हमने कहा है कि जी स्टेप डिस्क्रिप्शन के आप लॉग आउट प्रेस करें और लॉग आउट प्रेस करने के बाद दोबारा लॉगिन का पेज आता है कि नहीं आता, दैट्स इट। इसमें ना तो हमने उनको बताया है कि व्हाट इज द यूआरएल दैट यू एक्चुअली हैव टू गो टू, ठीक है, ना हमने बताया यूजर नेम और पासवर्ड क्या होगा, ना हमने बताया कि लॉगिन जब आप होम पेज पे आते हैं तो इसके अंदर हमने बहुत सी इंफॉर्मेशन नहीं बताई जब हमने पहली वाली एग्जांपल डिस्कस किया। अब अगर हम इसी को डिटेल वर्जन इसका देखें तो उसके अंदर स्टेप नंबर 1 देखें, स्टेप डिस्क्रिप्शन क्या कह रही है कि ओपन द यूआरएल, देन वी हैव गिवन अ यूआरएल जिसको आपने जाके एंटर करना है। और एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी हमने अब डिटेल में लिखा है कि लॉगिन पेज वुड बी डिस्प्लेड एंड इट शुड हैव द फॉलोइंग फील्ड्स, यूजर नेम, पासवर्ड और सबमिट का एक बटन होना चाहिए। इसी तरह स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने कहा है कि जब आपका लॉगिन पेज डिस्प्ले हो जाए तो यू हैव टू एंटर वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। उसके अंदर फिर हमने टेस्ट डाटा भी दिया है कि यूजर नेम की फील्ड में ये डालें, पासवर्ड की फील्ड में ये डालें। नाउ यू कैन सी दैट अब ये 2 स्टेप्स ही पढ़ के हमें पता लग रहा है कि हाउ एलैबोरेट इज दैट, ठीक है। एंड देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। Anybody who can use a computer, he can use the second or the detailed version of this test case and perform this testing. Whereas जो पहले वाला वर्जन है उसके लिए somebody he needs that knowledge कि यूजर नेम और पासवर्ड क्या है या यूआरएल क्या है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पहला वाला टेस्ट केस है वो शायद उस बंदे के लिए जो कि इज वेरी एक्सपीरियंस और उसको पता है कि यार कौन सी डोमेन आपने कहाँ जाना है, यूआरएल क्या है और क्या यूजर नेम एंड पासवर्ड रखे हुए हैं। लेकिन इन दिस यूजिंग द सेकंड एग्जांपल या जो डिटेल वर्जन है इसको यूज करते हुए कोई भी टेस्टिंग कर सकता है। So this is the key difference between the two. Okay, whenever you have detail, so it makes it easy for anybody to use that test description and execute the test case. So that is the difference between a detailed version and a not so detailed version. So now we have this slide which actually, we have a small, let's have a quick discussion before we end this lecture. Okay, why do we write test cases? Because I strongly believe that everything we do in a software engineering is for a purpose. So what is the goal of these test cases? Okay. इन केस ऑफ नॉर्मल प्रोडक्ट्स, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी ट्रेडिशनल प्रोसेस मॉडल आपका लगता है, तो टेस्ट केसेस लिखने के 2 गोल्स होते हैं। द फर्स्ट गोल इज क्रेडिबिलिटी, ठीक है। क्रेडिबिलिटी क्यों? क्योंकि जब आपने प्रोडक्ट किसी कस्टमर को देनी है तो अगर आपकी प्रोडक्ट सही चल रही है तो वो टेस्ट केसेस की बेसिस पे ऊपर चल रही है, और हम जब टेस्ट केसेस कस्टमर को देते हैं तो हम कस्टमर को ये प्रूव करते हैं कि यार आवर प्रोडक्ट इज क्रेडिबल, ठीक है। इफ यू रन दीज टेस्ट केसेस हमारी प्रोडक्ट सही चलेगी, ठीक है। तो ये यूज कब होती है? जब एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की जाती है। इस तरह जो सेकंड गोल है टेस्ट केसेस का, दैट इज फॉर टीम्स इंटरनल यूज। पहला वाला एक्सटर्नल यूज के लिए, दूसरा इंटरनल के लिए। उसके अंदर हम क्या चेक करते हैं? वी ट्राई टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ आवर टीम, ठीक है। जिस तरह कई तरह की एफिशिएंसी हो सकती है। एक तरह आप डेवलपर्स की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं कि डेवलपर ने एक बिल्ड दी, आपने देखा इसमें कितने बग निकले, तो यू कैन जनरेट अ रिपोर्ट कि 1 महीने के अंदर एक डेवलपर के कितने बग्स निकले। तो उससे आपको एक तो डेवलपर्स की एफिशिएंसी पता लगी, साथ आपको टेस्टर्स की भी एफिशिएंसी पता लगी कि कौन सा टेस्टर कितने बग्स अनकवर करता है, ठीक है। तो सेकंड गोल इज इंटरनल, जिसके अंदर आप एफिशिएंसी मेजर कर रहे हैं, ठीक है। ओके जी, और ये नॉर्मली कब होती है? जब हम सिस्टम लेवल टेस्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे आजकल एक जो हम एजाइल प्रोसेस मॉडल बड़े यूज हो रहे हैं, ठीक है, दैट इज वेरी कॉमन, ठीक है। फॉर एग्जांपल ड्यू टू दिस ई लर्निंग देयर आर लॉट्स ऑफ स्मॉल कंपनीज दैट आर फॉर्मिंग, जो कि प्रोजेक्ट्स उठाती हैं एंड दे डिलीवर स्मॉल इंक्रीमेंट्स टू द कस्टमर, ठीक है। इसके अंदर जो क्रेडिबिलिटी वाला गोल है वो शायद उस तरह से एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। सो हम जो टेस्ट केसेस लिखते हैं वी राइट देम फॉर इंटरनल यूज, लेकिन गोल हमारा चेंज हो जाता है। जो नॉर्मल के अंदर हमने कहा था कि जो एक्सटर्नल यूज के लिए जब आप टेस्ट केसेस लिखते हैं तो उसके अंदर हमारा गोल क्रेडिबिलिटी होता है। इसके अंदर हमारा गोल क्रेडिबिलिटी है, लेकिन वी राइट टेस्ट केसेस फॉर इंटरनल यूज,
ठीक है, नॉट फॉर एफिशिएंसी, क्योंकि हमने जब छोटी छोटी इंक्रीमेंट्स देनी है तो कस्टमर ने हर एक के बाद हमें फीडबैक देना है, ठीक है, तो वी वांट अ गुड फीडबैक, वी वांट द कस्टमर टू बी सेटिस्फाइड, सो आवर गोल इज क्रेडिबिलिटी, लेकिन द टेस्ट केसेस दे आर रिटन फॉर इंटरनल यूज, कस्टमर वुड नॉट एग्जीक्यूट दोस टेस्ट केसेस, ठीक है. सो दिस इज अ जनरल, सो आई थॉट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस कि हम जो टेस्ट केसेस लिखते हैं वो हम क्यों लिखते हैं. सो वी सी देयर आर टू काइंड्स ऑफ गोल्स, वी हैव क्रेडिबिलिटी एंड एफिशिएंसी, ठीक है, एंड व्हेनेवर वी राइट टेस्ट केसेस फॉर द कस्टमर तो हम कहते हैं कि जी हम क्रेडिबिलिटी अपनी स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं. जब हम इंटरनल यूज के लिए करते हैं तो हम एफिशिएंसी, लेकिन हमने कहा कि जब हम एजाइल प्रोसेस मेथोडोलॉजी को यूज कर रहे होते हैं तो आवर गोल इज एक्चुअली क्रेडिबिलिटी, लेकिन वी नॉर्मली राइट दोस टेस्ट केसेस फॉर इंटरनल यूज. Okay ji, now let's summarize our whole series of lectures on test cases, where we started and where we have ended up with. Okay ji, now if you remember those traditional process models, उसके अंदर हमने कहा था, we discussed कि जी हमारा पहला फेज क्या होता है, analysis, फिर हमने कहा जी it is followed by design, और they basically they can be concurrent as well, फिर हमारा testing होता है, फिर नहीं testing से पहले we have implementation, okay, and then we have testing, and then finally we have deployment. तो हमने इस टेस्टिंग को कवर किया इन लेक्चर्स के अंदर, ठीक है. जब हमने टेस्टिंग की बात की तो वी स्टार्टेड ऑफ विद कि जी टेस्टिंग के लेवल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, वो हमने देखे, ठीक है. इनफैक्ट लेवल्स करने से पहले हमने देखा कि टेस्टिंग का एक प्रोसेस जो है, या टेस्टिंग के प्रोसेस का लाइफ साइकिल के अंदर क्या क्या फेजेस हैं, ठीक है. तो in the first lecture what we covered, phases in the life cycle of testing process. उसके बाद हमने किए testing levels, ठीक है. Then we discussed the testing methods in the second lecture on testing and techniques, ये हमने कवर की. और आज के लेक्चर में we covered the test cases and briefly we discussed the debugging process as well, ठीक है. When we discuss the phases in the life cycle of testing, उसके अंदर हमने सबसे पहली फेज देखी थी कि we study the requirements, ठीक है. रिक्वायरमेंट स्टडी करते हैं, then we analyze and plan कि हमने टेस्टिंग कैसे करनी है, ठीक है. फिर हम टेस्ट एग्जीक्यूट करते हैं, then we do test closure, टेस्ट क्लोजर के बाद हम टेस्ट प्रोसेस का पूरे का एनालिसिस करते हैं. तो those were the different phases in the life cycle of the testing process. फिर जब हमने टेस्टिंग लेवल्स की बात की तो हमने कहा यार तीन तरह के लेवल्स होते हैं, एक यूनिट टेस्टिंग होती है, एक इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, एक सिस्टम टेस्टिंग होती है, और एक एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है. हर लेवल का मतलब क्या है कि लेवल डिफाइन करता है कि कितनी डिटेल में होगी टेस्टिंग. जैसे यूनिट टेस्टिंग के अंदर हमने कहा कि हम जो कोड या मॉड्यूल या जो भी छोटा सा कोड का मॉड्यूल करते हैं हम उसको साथ ही यूनिट टेस्ट कर देते हैं, ठीक है. फिर हमने कहा जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है वो जब भी दो मॉड्यूल्स को आपने इंडिविजुअली टेस्ट कर लिया, उनको जब आपने मिलाया तो देन यू डू इंटीग्रेशन टेस्टिंग. फिर उससे बड़ा लेवल ऑफ टेस्टिंग क्या है, जो सिस्टम टेस्टिंग होती है. सिस्टम टेस्टिंग के अंदर आप सारी प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं. देन फाइनली यू डू एक्सेप्टेंस टेस्टिंग व्हिच इज डन बाय द एंड यूजर्स. एक और चीज जो हमने पहले लेक्चर में देखी थी कि हु परफॉर्म्स दिस टेस्टिंग. तो हमने कहा तीन तरह के लोग टेस्टिंग करते हैं. इट इज द डेवलपर हु वुड डू द यूनिट लेवल टेस्टिंग, देन यू हैव द टेस्टर्स जो कि आपकी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन और सिस्टम लेवल टेस्टिंग, देन यू हैव द कस्टमर एंड द एंड यूजर और द एंड यूजर जो कि बेसिकली एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करेंगे. अच्छा, after that on the second lecture on the in our second lecture on testing we discussed different testing methods and techniques. जैसे हमने तीन मेन टेक्निक्स पढ़ी. one was black box testing, then we did white box testing and we did incremental and thread testing. we saw कि black box के अंदर हमारा गोल क्या होता है, प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी को चेक करना. white box के अंदर हम कोड को, अपने कोड के सेमेंटिक्स को और कोड के डिजाइन को चेक करते हैं लॉजिकली कि वेदर इट्स वर्किंग फाइन, जो बिजनेस रूल से हमने सही तरह से किया कि नहीं किया. इसी तरह हमने देखा इंक्रीमेंटल और थ्रेड के अंदर हम जब मॉड्यूल्स के अंदर नई फंक्शनैलिटीज डालते हैं तो वी वांट टू सी कि एक फंक्शनैलिटी ने पुरानी फंक्शनैलिटी को चेंज तो नहीं कर दिया, तो वी डू दैट टाइप ऑफ टेस्टिंग. एक और हमने बड़ी इंटरेस्टिंग सी मैट्रिक्स बनाई थी जिसके अंदर हमने उस लेवल को इन मेथड्स के साथ मैच किया था, जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया था कि यूनिट लेवल टेस्टिंग के अंदर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग मेथड और टेक्निक यूज की जाती है. फिर इंटीग्रेशन लेवल के अंदर वी यूज व्हाइट बॉक्स, वी कैन यूज इंक्रीमेंटल एंड वी कैन यूज थ्रेड टाइप ऑफ टेस्टिंग. इसी तरह हमने कहा कि सिस्टम लेवल के ऊपर और एक्सेप्टेंस लेवल के ऊपर द टेक्निक दैट इज यूज्ड इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. ओके, एंड इन टुडेज लेक्चर वी स्टार्टेड ऑफ विद अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द डिबगिंग प्रोसेस. हमने देखा कि जी डिबगिंग प्रोसेस मुश्किल क्यों है, क्योंकि उसमें हमने करना क्या होता है कि वी आइडेंटिफाई द सिम्पटम, ठीक है, जो कि हमें टेस्टिंग के अंदर पता लगता है, और हम सिम्पटम को एरर से
मिलाने की कोशिश करते हैं, और प्रॉब्लम क्या होती है कि सिम्टम को एरर से मिलाना इज नॉट दैट इजी, ठीक है। वी सॉ व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज। फिर हमने देखा कि देयर आर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर डीबगिंग। एक ब्रूट फोर्स होता है जो कि नेम ही सजेस्ट करता है कि दिस इज अ वेरी एग्जॉस्टिव टेक्निक। देन वी हैव बैक ट्रैकिंग विच इज सूटेबल फॉर स्मॉल प्रोग्राम्स, एंड देन वी हैव कॉज एलिमिनेशन जिसके अंदर वी यूज इंडक्शन और डिडक्शन टू फिगर आउट और रिफाइन द डाटा जिसके ऊपर आपका प्रोग्राम बग दे रहा है। सो यू लाइक टू आइसोलेट द प्रॉब्लम। ओके, following that we had a detailed discussion on test cases, that what are the different fields that we can have in test cases which will ensure that the test cases that we have written is a good test case. Okay, then we saw कि जब हम test cases देखते हैं उसका review भी हम कराते हैं, review कराना क्यों important है। और फाइनली हमने देखा कि why do we write these test cases, ठीक है। उसके अंदर हमने देखा there are two kinds of goals that we try to achieve. One is credibility, which is जिसके लिए हम कहते हैं कि जब हम टेस्ट केस एक्सटर्नल यूज के लिए लिखते हैं उसमें हमारा गोल क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि हम वो कस्टमर के लिए स्टेप लिखते हैं। फिर अगर आप टीम के इंटरनल यूज के लिए लिखते हैं तो उसके अंदर हमारा गोल एफिशिएंसी होता है, ठीक है। सो दैट वाज आवर सीरीज ऑन दैट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ठीक है। और आई एम श्योर दैट यू गाइज वुड हैव लर्नड अ लॉट इन दीज 3 lectures. And if you have any questions about testing and what kind of testing is used in the industry, or any particular questions, then you can email me that on my email address, and you can we can have a discussion there as well. So thank you very much for being so patient, and inshallah I will see you in the next lecture. Assalamu alaikum.